مدینہ شریف کا مسافر بنا دیا. جو نظر سے نظر کو نواز دے, جو نظر سے نظر کو نواز دے, ہمیں اس نظر کی تلاش. جو تیرے درد سے ہو آشنا, جو تیرے درد سے ہو آشنا, ہمیں اس جگر کی تلاش. ہماری اور آپ کی مشترکہ ترتیبی ہے. ہمارے نائب جماعت اہل سنت کی بہت ساری عظیم اور مختصر شخصیتیں اس وقت جلوہ بار. ہماری جماعت کا وہ عظیم نبی جس کی نقابت سے پورا ملک ہی نہیں بلکہ ملک بھی محروم ہو رہا, اور نقابت سے زیادہ دل کے قلم سے فکری کابش کو ایک چند لوگ ان کے لیے دعائیں دیتے ہوئے, جنہیں ہم نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا محبوب گوہر اسلام پوری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ فضالیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. ان کا ایک تکنیکی مجموعہ یہ بھی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آج بہت ساری ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سوانح نثر میں کسی نے لکھی ہے تو وہ بہار کا ایک شہزادہ ہے جنہیں ملک العلماء کہتے ہیں. اور اسی نثر کو نظمیے سیاقے میں ڈال کر اعلیٰ حضرت کی سوانح نثر کو کسی نے اکٹھا کیا ہے تو اسی شاعر کا نام حضرت محبوب اور دوسری طرف سے ہماری جماعت کا فنکار پورا ملک کے ہندوستان اپنی مقام جہاں سے معاشرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. جنہیں شاعر اہل سنت حضرت عظمت بھارت کے نام سے جانتے ہیں. پانی کے لیے دو چار جھوٹیں آپ سے گر رہی ہیں. اگر ان جھوٹوں سے آپ سے پریشانی ہے تو میں کہوں گا پانی کے جھوٹوں کے سوال مجھے پانی برسنا ہی تھا تو اس کربلا میں کیوں نہیں برسا جہاں کیوں برستا ہوا نظر آ رہا. رقیب اہل سنت فرماتے نظر آئیں گے حضرت قادری کربلا میں پانی کے جلسات کے امتحان لیا گیا تھا اور پارا میں پانی برسات کے امتحان لیا گیا تھا. کربلا میں پانی نہ ملا پھر بھی آلے پیغمبر کرتے رہے. اب پارا جو ان دیالوں اور مسلمانوں کے سینے میں اگر حضور شمس الاولیاء کی سچی محبت ہے تو دیکھتا ہوں کہ پانی برسنے کے بعد کتنے دیوانے ہیں کوئی پانی میں بھی ڈٹ کر بیٹھے رہے گے. پانی کو آواز ہوئے پانی تمہیں کتنا برسنا ہے برسو میں بھی وہ دیوانہ ہوں کتنا برستا ہے دنیا میں مسلکی علی حضرت والمال سنت بستی بستی کریا کریا بستی
علی بستی کریا کریا ان سے شمسل غالیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کام ہے اور آپ کے دل پر گرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو ٹھنڈ لگ جائے، ہو سکتا ہے بخار آ جائے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے کپڑے گیلے ہو جائیں، لیکن جہاں تم بیٹھے ہو اس بارگاہ میں یہ حضور شمس الاولیاء کی بارگاہ ہے، پانی کے قطرے تمہارے دل کے کپڑوں کو گیلے کر کے پڑتے ہیں، مگر حضور شمس الاولیاء کا فرمان تمہاری روح کو تازہ کر دے گی۔ بہت اچھا بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سب بیٹھ جاؤ، یقیناً حضور شمس الاولیاء کا فیضان جاری و ساری ہوگا۔ آپ دیکھیے آگے تھوڑا سا چہرہ قریب ہو محبت سے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے نبی کا کرن میں نے لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کے مجمع میں آپ کو بولتے تو دیکھا ہے، لیکن ان پچھڑے ہوئے انسانوں میں بولتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھنے میں لوگ کم ضرور ہیں اور یہ پچھڑے پڑے ہیں۔ ہماری قوم جس دن بکھر گئی اس دن اس پر عذاب الہی نازل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آج ہماری قوم متحد ہو جائے تو وقت کی ہر فولادی قوت کو اپنے قدموں پہ جھکنے پہ مجبور کرتی ہوئی بولے آمین۔ شمس الاولیاء کی جو تاریخ ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے بچپنے سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے کی منزل تک ان کی صبح دیکھی ہے، ان کی شام دیکھی ہے، ان کا دوپہر دیکھا ہے، ان کی خلوت دیکھی ہے، ان کی جلوت دیکھی ہے، ان کی زندگی کا سفر دیکھا ہے، ان کی زندگی کا حضر دیکھا ہے، مگر جن نگاہوں نے دیکھا ہے نمن نگاہوں کو ہزاروں سلام کرتا ہوں کہ حضور شمس الاولیاء اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے نبی کی سنتوں کا خاص خیال رکھا کرتے ہیں۔ حقیقت پر مبنی ہے تو میں علماء سے گزارش کروں گا کہ ذرا حضرات زبان کھولئے، اس لیے کہ ہر لڑائی کا ایک فلیور ہوتا ہے۔ جب تک کمانڈر بیدار رہتا ہے اس کے لشکر بھی لڑنے کو تیار رہتے ہیں۔ اگر آپ حضرات سبحان اللہ بول دیجیے گا ہماری پوری قوم سبحان اللہ بولنے پر مجبور ہو جائے گی، اس لیے کہ امام جہاں جہاں ہوتا ہے وہی وہی مقتدی ہوتے ہیں۔ ذرا بول کے آپ حضرات نے سبحان اللہ کہہ دیے۔ شمس الاولیاء کی بارگاہ میں اتنے مقدس علماء صوفیاء اور یہ دور دراز سے آئی ہوئی عوام سمٹ کر کیوں آئی ہے؟
जल्दी लगा आगे जल्दी आज से 50 साल से और तकलीफ करता हुआ लगा। हम जानते हैं कि आप अभी भी चाहे तो इख्तिलाफ पैदा कर सकते हैं, आप अभी भी चाहे तो माहौल चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा डिस्कस वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। इतनी खराब है, अगर आपकी आपसे 10 साल पहले वाली तकलीफ शुरू कर दे तो मेरे मरने का एक आदमी भी जरूर नहीं भागेगा, सब सिमटता रह जाएगा। लेकिन गाँव में बहुत सारी कानूनी पेटियों की जंजीरें लगी हैं, इन जंजीरों को मैं तोड़ना नहीं चाहता। मैं मोहब्बत से आपको आवाज देकर करीब बुला रहा हूँ। गुजारिश ये है कि आप थोड़ी देर बैठ कर इसके वक़्त को बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद हमारी जमात का वो फनकार साहिब जिसे हजरत अहमद भागलपुरी के नाम से जानते हैं, उनके चरणों रेडियो से अपने कुलूब को मोहब्बत के जोर से सुभान अल्लाह। क्या खेल नहीं थे, जिसको आप अपने मुकद्दर मौलाना को पूछिए। हमने जो देखा है वो यही देखा है कि एक बच्चा सिपाही मतलब के आला हजरत की हिफाजत का अगर सीतामढ़ी में कोई था तो उसी बात को शमसुल औलिया के नाम से जानता। हर जगह जाकर मतलब के आला हजरत की मुझे कहने में तसल्ली करे नहीं करता तो हुजूर शमसुल औलिया की सबसे अच्छी ये थी जो उन्होंने मसलक के आला हज़रत के बागी से बनावट की है और मसलक के आला हज़रत के मानने वालों से मोहब्बत की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, हज़रत सालम सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला जिसके नारा लगाने को कबूल फरमा ले और इस बुढ़ापे में ये मदीना शरीफ का मुसाफिर करना। बोल तो बोल गया। मैंने एक साल को देखा, आज पीर बन जाते हैं तो पीर का काम क्या? के यहाँ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। ये गलत बोल रहा हूँ। आज कल तो ऊपर कुछ ना है, न जाने कैसा मैं गलत बोलूं तो मेरी जबान अंगूठी पहने हो तो वो बहुत बड़ा पीर है। ताबीज के बजाय वो कहाँ से इतना मोटा मोटा माला ला के बहुत बड़ा पीर है। मैं पूरे लफ्जों में कहता हूँ, अगर किसी को पीर तस्लीम करना हो तो दुनियादारी से मत तस्लीम कर लेना। आजकल लोग बोलने वाले को पीर कहते हैं, आपके छोड़ों के चलने वालों को पीर कहते हैं, मगर मैं पूरे लफ्जों में कहता हूँ, एक शख्स मेरे पीर मुर्शिद से मुझसे भी आकर अबुल बरकत मुजुद्दीन आले रहमा मुस्तफा रज़ा खान
मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में बरेली शरीफ हाजिर आए। इरादा ये हुआ कि सरकार के पूरी करामत का ज़हूर हो जाए तो मैं उनके हल्के में दाखिल हो जाऊंगा। 3 दिन की मुद्दत उसने गुजारी, कोई ऐसी करामत उसने नहीं देखी जिससे उसका कल्ब उसकी तरफ माइल होता। और उसका सरकार अब इजाजत दीजिए मैं चलता हूँ। जैसे ही इजाजत मांगा है सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं क्या आपकी तमन्ना पूरी हो गई? जरा जोर से बोलिएगा, जरा बोलो हाथ अगर सलामत हो हवाओं में लहरा के बोलिए। सरकार मुफ्ती आज़म का अंदाज़ तकल्लुम बता रहा है कि आप उसके दिल की हालत जानते हैं। अब यहाँ करके नबी आज़म हिंदुस्तान ने जुमला पीछे का दे दूं क्या रे जब बरेली के मुस्तफा नज़र का ये हाल है तो मदीना के मोहम्मद मुस्तफा का क्या तसल्लुफ का ये हाल है तो मेरे मुस्तफा के तसल्लुफ का क्या हाल होगा? सरकार को बिजारू फरमाते हैं क्या आपकी तमन्ना पूरी हो गई? इस अंदाज़े तकल्लुम से दूसरे समझना चाहिए। लेकिन आजकल क्या कीजिएगा, जो लोग लगा के घूमते हैं वो लोग अपने आप को VIP समझते हैं, आइए उनके सेठ समझते हैं, मगर उन्हें क्या मामला समझना है कि अंदाज़े तकल्लुम क्या है? अंदाज़े तकल्लुम बता रहा है हे आने वाला मैं तेरे इरादे को भी जान रहा था, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या आप अपने इरादे में कामयाब हो गए? मगर वो न समझ सका, मुझसे क्या जाने गया अंदाज़े तकल्लुम को वो समझ ही नहीं पाया कि आने वाले का जो मामला था वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपनी ज़बान से फरमा रहे हैं। अच्छा सरकार इरादा तो ये था आपके कोई करामत बदाही देख लेता और आपके कदमों से निपट कर आपकी गुलामी का खिलाजा अपनी गर्दन में डाल लेता। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया करो 3 दिनों की मुद्दत तूने मेरे साथ बुलाई, नई जिंदगी के कोई लम्हे ऐसे देखे जो शरीयत के खिलाफ हो। सरकार शरीयत के खिलाफ उठने वाला कोई लम्हा आपका नहीं था। सुन लो जो शरीयत का पाबंद है वही बात करामत वाली है। मेरा तस्वीर मुझे करने दो, हुजूर शमसुल औलिया शरीयत के पाबंद है, इसलिए ये कहा जाना जानिब है हुजूर शमसुल औलिया करामत वाली थे और मैदान है फिर भी बात कहते हैं मुझे कहेंगे कि पढ़ाते थे कि आज बच्चा तो मुरीदों में जाते थे, हमने कहा मुरीदों में आजकल 3 साहब नजराना लेने जाते थे। मैंने देखा है हुजूर शमसुल औलिया ने नजराना नहीं लिया बल्कि ये कहा है तेरा नजराना कबूल है, ये मेरी तरफ से तू अपनी औलाद को भी खिलाया। उनके खिदमत को अल्फाज के धागे में समोया नहीं जा सकता, बल्कि अगर मैं दूसरी जबान में कहूँ तो ये कहूँ कि मसलक के आला हजरत के प्रचारक की हैसियत से सीतामढ़ी में कोई अहम तरीन शख्सियत थी तो उसी शख्सियत को हुजूर शमसुल औलिया कहते थे। मोहब्बत एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा आप लोग कर्म कीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइएगा और रोज आगे ये कैसा मवाद दे के चला जाएगा क्या आप मर के जम तक याद कीजिए। जल्दी से बैठ आज वही माइक के सामने जो माइक है पता नहीं वो माइक बंद है या इसका मुंह बंद है।
इरफान को पलट दीजिए, इरफान को पलट दीजिए, सूखा हो जाएगा, सब लोग ऊपर बैठे पलट दीजिए। अरे अब ना हो रहा है, बारिश आ जाओ इतना सा। मोहब्बत के गुरु शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा अब कपड़ा मंगवा दो, पोता लगा दी। आई बाप पे तो दुकान है, आई बाप पे दुकान है। ए भाई मेरे आजा मेरे लाल आजा मेरे लाल आजा बैठ जा। तू आज यहाँ बैठ जाएगा, मैदान मैदान में जो अलामत तेरे लिए सिफारिश करेगा। आ जाओ बैठ जाओ, आपको बारी बड़ी हो रही है, करीब आ जाए। आ जाओ लोग से आए क्यों के मुरीद नहीं है, अब शमकुलौलिया के मुरीद नहीं है। अगर 8% मुरीद होंगे, 40% दूसरे पीर के मुरीद होंगे। आगे बढ़ा 12 शरीफ के कदम रखते ही दाढ़ी पिलाने लगी है। नसीब आजम हिंदुस्तान में भूटा के लिए दाढ़ी कैसी है, दुनिया के बाहर की दाढ़ी है। नेपाल से आने वाले लोग भारत में तो चले आए इंडिया, तो इंडिया की सूरत हाल इतनी खराब है, तब पूरे मुल्क वाले इंडिया में आना नहीं चाहते, मगर कैसे ये चले आए तो हम फौरन इन्होंने काम मौलाना ये जुमला सुनो, ये दाढ़ी देख कर ये जुमला मत बोलो कि वो लोग क्यों आ गए। मुर्शी नजरों में झाँक के पूछो, बता तू किधर जा रहा है। मैंने जब इसी नजरों को देखा तो ये पुकार उठे, जो नजर से नजर को नवाज दे, हमें उस नजर की तलाश है। मामला क्लियर हो जाए, तो नजर से नजर को नवाज दे, हमें उस नजर की तलाश है। मैंने कहा हुजूर रकीब आज़म हिंदुस्तान, नजर से नजर को तलाश नवाजने वाली नजर कहाँ मिलती है। मैंने बहुत सारी नजर को देखा है, जो सड़कों पर मिलती है, शाहराहों पर मिलती है, मकानों में मिलती है, बाजारों में मिला करती है। आखिर वही नजर की बात आप करते हैं तो ये कहेंगे अब्दुल कादरी, जो नजर बाजारों में मिलती है, मैं उस नजर की बात नहीं करता। जो नजर बाजारों में मिलती है, मैं उसी नजर की बात करता। अब हमारे सभी भाई की जवानी आई, एकदम इनका खून इस वक्त गर्म हो गया और इस खून में और ज्यादा गर्मी आपको पैदा करनी है तो आप सबको हाथ उठाकर एक बार जोर पे या रसूल अल्लाह। मैं अगर
صاحب یا حضور صاحب سجادہ حضرت حافظ غلام گیلانی صاحب کے قدموں کی دھول کو چہرے کا غازہ بنتے ہوئے عزیزہ یہ پیش کروں کہ حضرت ہم نے بہت ساری نظر کو دیکھا ہے، جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ دولت کا مارا، موت کا مارا غریب بن جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کے یہاں جو خانقاہ ہے وہاں بھی ایسی نظر ملتی ہے؟ تو یہ ہمارے علماء فرمائیں گے نادان زبان خاموش رکھو، وہ دنیا والوں کی نظر ہے جو انسانوں کو برباد کر دیتی ہے، یہ اللہ والوں کی نظر ہے جو برباد انسان کو برباد کرتے ہیں۔ لاکھوں پر یہ بھاری بنتے ہوئے شمس الاولیاء کا بولیے ہے یا نہیں؟ پانچ بھائی کو پانچ تلواریں نکلتی ہے، پانچ بار چڑھائی کے چڑھانے پر انسان پہنچتا ہے، اختلاف کی دیوار گھروں میں تان دی جاتی ہے، مگر یہ حضور شمس الاولیاء کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو پائی جہاں ہے وہی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حضور شمس الاولیاء کے سب کے ان حضرات کو سلامت رکھے، ترقی دے، عروج عطا فرمائے۔ ذرا غور سے بولیے آمین۔ یہ جو نظر سے نظر کو نواب دے، ہم نے کہا وہ نظر مزاروں میں ملا کرتی ہے، مگر نظر کسی بندے کو وہ نظر کہاں سے ملتی ہے؟ یہ بھی اگر کہیں قریب ہے تو بولیے سمجھا دوں۔ میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ حضرت محبوب صاحب کی نظر اتنی اچھی ہے کہ کسی مردے کو دیکھ لے زندہ ہو جائے، کسی بہرے کو دیکھ لے تو اس کے کان میں سماعت آ جائے، کسی گونگے کو دیکھ لے تو اسے بولنے کی طاقت پیدا ہو جائے، کسی لنگڑے کو دیکھ لے تو اس کا لنگڑا پن ختم ہو جائے، کسی لولہے کو دیکھ لے تو اس کا لولہا پن ختم ہو جائے۔ کہا مولانا یہ نظر ان کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ ہم نے کہا ان سے مت پوچھو، پوچھنا ہو تو چلو بریلی امام کو محبت کی قربت پر چل علیدہ پیش کرو، ایسے جب بنا آلہ حضرت اے امام ہے سننا، اے دریائے رحمت، اے مجدد دین و ملت، اے شیخ الاسلام والمسلمین، واقعی وہ نظر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو آلہ حضرت فرماتے نظر آئیں گے، اور فرماتے ہوئے نظر آئیں گے جو میں نے آواز میں شیر کہا تھا، میں اسے بھی بھول رہا ہوں، ذرا آپ کو سبحان اللہ بول دیجیے گا۔ نہیں حضرت کا جو دوسرا سے نعمتیں پہنچتا کہ سمت کو سکھائے گیا، کہا منشی رحمت کا قلمدان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں سے قربان گیا۔ وہ سے بولے پورا مجمع ہمارے میرے میں دعا کرتا ہوں مولا آپ کی پڑھنا کے تیرے کسی پر ہمارے میرے تیری پاسی جان کی ہے اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما گیا۔ وہ تیرے قدموں سے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا۔ اعلیٰ حضرت کا دوسرا فیض نظر کی غمازی کرتا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا۔ جب نبی کی یاد سے مومن کا دل معمول
चमकदार रोशनदान है और उस मकान में एक बल्ब जला है। कैसे बल्ब जलता है? खिड़की से रोशनी बाहर जाती है, रोशनदान से रोशनी बाहर जाती है, दरवाजे से रोशनी बाहर जाती है। ऐसी मोमिन का दिल एक मकान है। जब ये नबी की याद से मामूल होता है तो सूफिया फरमाते हैं अगर मोमिन के दिल में मुस्तफा की जलवागरी होती है, सदम मोमिन का सीना जलवागाहे मुस्तफा बनता और वो नूरानी किरण बिखेरती है तो जिधर जिधर निकलना होता है, कभी आंखों से, कभी जबान से, कभी हाथ से, कभी पाँव से, ये ठोकर मार दें तो मुर्दों में जिंदगी आ जाए। किसी अपाहिज के जिस्म पर कच्चे नाजरी डाल दे तो अल्लाह शिफा दे दे। किसी बदमाश को गरीब फैला कर अकीदा बना दे तो मसलक आला हज़रत का बनता हुआ तकबीर, नारे रिसालत, गुलामे मुस्तफा जिंदाबाद, गुलामे मुस्तफा जिंदाबाद, आशिके मुस्तफा जिंदाबाद, आशिके मुस्तफा जिंदाबाद, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, शमसुल औलिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, बोलो अलग बोला। अल्लाह ताला की उम्र में, इल्म में, फजल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और बोलिए आमीन। शमसुल उलमा को कुरान के आईने में देखा इजाजत है, इजाजत है। बोलिए आपको सुनने के मूड में है, बोलिए सुनना चाहते हैं। लोग खड़े होकर पाँव में दर्द पैदा कर रहे हैं। अरे तुम हो पाँव में दर्द हमारे हो रहा, जरा बैठ जाओ नीचे ताकि समझ में आए कि दीवाने हुजूर शमसुल उलमा यहाँ तकरीर फरमा। अब कुरान की जो आयत में तिलावत की अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। तो बोलिए एक तर्जुमा है तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। तो बोलिए जोर से। मेरे आला हज़रत ने इस आयत का तर्जुमा क्या किया? तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। बड़ा जोर से बोलिए। तनाज़ुम के अगर कादरी बोलने पर आ जाए तो एक रात नहीं हजारों रातें जवान होकर बूढ़ी हो जाए, फिर जवान हो फिर बूढ़ी हो जाए, फिर भी कमाहत तो हुआ कादरी बयान नहीं कर सकता। मगर मुख्तसर से अल्फाज को का सहारा लेकर आपसे चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। बड़ा महत्व से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। जल्दी हजरत साहब के सज्जादा मगर इस वक्त आपको 8 के लिए बदल दिया पूरा नहीं हुआ और एक सियार छोड़ लीजिए। मैंने वाक चौक पर जो देखा ये कुछ करके आला हजरत के खिलाफ हुजूर शमसुल उलमा पूरी जिंदगी मसले के आला हजरत का ही ऐलान करके इस लौंडे ने, इस खबीस ने अपने बुजुर्गों के दामन में दाग लगाने की कोशिश की है। मैं उनसे कहता हूँ अगर तू अपनी आखिरत बर्बाद करना चाहता है तो आने वाले दिनों में भी ऐसी ही बात सोच करते रहना। और अगर आपको संभालना चाहता है तो सुन लो, हमारे मसले के आला हजरत ने तस्वीर खींचना खींचवाना दोनों हराम है और हराम है, हराम है। तुमने सबकी तस्वीरें खींच
सुभान वो ठीक है, आपने जो जवाब दिया वो भी ठीक है, मगर मैं जो कह रहा हूँ जो उसको कर कि आप लोगों के दामन में दाग है कि हमारे हुजूर शमसुल औलिया के दामन में नापाक दाग लगाने की कोशिश करता और जो बुजुर्गों से उलझता है वो दुनिया में भी बर्बाद रहता है, आखिरत में भी बर्बाद रहता है। अगर तूने उन्हें पीरी अंदाज में ये किया है तो तू बर्बाद होके रहेगा। इसलिए सच्चे सिपाही को शमसुल औलिया कहते हैं, उनका दामन कभी बेदाग था, आज भी बेदाग है। मोहब्बत से जरूर शरीफ पढ़िए। हुजूर साहिब सज्जादा आने वाले मुरीद से कहा मैं तुझे तेरा जिक्र करूं। मुरीद ने कहा जब मैं चला था तो आपके जिक्र में रहा, घर से चला, अपने घर वालों को कहा मैं बारा शरीफ जा रहा हूँ, हुजूर शमसुल औलिया के मज़ार मुक़द्दस पर हाजिरी होगी, साहिब सज्जादा से मुलाकात होगी। ज्यादा से ज्यादा उसने अपनी बीवी से कहा हो, अपने बेटा से कहा हो, अपनी बेटी से कहा हो, लेकिन हज़रत ने जहाँ आने वाले मुरीद का जिक्र किया वहाँ हल्के में जितने लोग बैठे सबका जिक्र इन्होंने कर दिया, सबके सामने उसका जिक्र किया। तेरा तस्बीह मुजाहिद करने दो, कुरान का अंदाज़े तकल्लुम है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूँगा। कोया बंदा जिक्र खुदा करता रहे, मौला फरिश्तों में बंदों का जिक्र फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, पूरी कॉन्फ्रेंस, नौजवान ने अब फहीम भाई 12 के नौजवानों की कमांडिंग के लिए तैयार, नारा लगना चाहिए। 12 के नौजवानों का हौसले न बुलंद हो तो उसके बाद आज तो 12 पर रहमत का 12 पर अल्लाह से दुआ कीजिए कि 12 ने रहमत से हम सबको मिल जाए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सवर मुझे याद करो मैं तुझे याद करूँगा। अल्लाह फरमाता मैं तमसीलन अफजल हज़रत महबूब गौहर साहब बैठे रहे, असार सोचते हैं, कभी कभी कहते हैं कि अल्लाह ने सबके अंदर वो खूबी रखा है। जो एक जुमला लिखते हैं तो सोचते हैं आए कहाँ हो, मकबूल कहाँ हो, मुज़क्कर है या मुअन्नस, वाहिद है या जमा, और ये सब कलम खाता है। तो मेरे जुमले से हल करने से पहले एक शेर भी देता है नाते मुस्तफा, रोज रोज अल्लाह ताला इस मंदिर में भी पनाह बरकतियां का फरमाया, कलम में उठा करना फरमाया, जहन में परवाज़ अता फरमाया। रोज बोलिए आमीन। इन्होंने बच्चे बच्चे जब सोचने लगे तो उन्होंने किसी को याद किया। फिक्री तौर पर आप जिसको याद करेंगे वो आपको भी याद करेगा। मेरा तस्बीह मुजाहिद करने दो, तुम खलवत में याद करो या जलवत में, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूँगा, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूँगा। अब आप खलवत में याद करें या जलवत में याद करें वो आपकी मर्जी है, मगर मेरा कदीर जहाँ आपको याद फरमाता है वहाँ मलाइका का हुजूम होता है।
तीसरा तर्जमा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूं। आला हजरत का जो तर्जमा है उस पर थोड़ी देर को शुरू करके मैं जल्दी से रखता होगा, क्योंकि अब माहौल बन गया है कि हजरत से अजमत साहब को आपके सामने पेश किया जाए। ज़्यादा वक्त मैं आपका लेना नहीं चाहता, सिर्फ आप लोग अगर बैठ जाइएगा तो अजमत साहब जल्दी आ जाएंगे, नहीं बैठिएगा तो देर से आएगा। ये अब आप सोच लीजिए, आपका काम है। तुम मेरा जिक्र करो, मोहब्बत से देखो भाई। हे बाबू, हे मेरा बोल लीजिए। अरे ये लोग बहुत मुअद्दब हैं, इनको ये मालूम है कि खड़े रहेंगे बुजुर्गों की बारगाह में तो बहुत ज्यादा मिलेगा, बच्चे रहेंगे तो कम मिलेगा। मगर यहाँ जो बैठेगा वो मिलाद मुस्तफा में बैठेगा, नबी की मिलाद है, जो मुअद्दब अंदाज में बैठेगा उसे ही ज्यादा मिलेगा। जो खड़ा रहेगा वो खड़ा ही रहेगा। आपको बैठना है बैठिए, आपको भी नहीं बैठना है तो अंग्रेज की तकरीर में खड़े रहिए, हम आपको हिसाब नहीं कह सकते। लेकिन बहुत मेहनत की मैंने आप लोगों को बैठाने की, मगर आप लोग पता नहीं कसम खा चुके हैं या घर से जिस वक्त चले थे उसी वक्त आपकी अहलिया ने कह दिया था क्या दोनों कागजी आ रहा है अगर वो बैठा दे बैठ जाइएगा तो वापसी में हम आपका इस्तेमाल काली खपड़ी से करेंगे। इसका डर है कि काली खपड़ी से आपका इस्तेमाल हो तो आप लोग खड़े रहिए। और अगर इसका डर नहीं, इस बात की समझना है कि मैं यहाँ बैठूंगा तो कल मैदान महशर में इन्हीं उलमा के साथ उठाया जाऊंगा तो बैठ जाइए। उलमा के साथ बैठता है वो मेरे मुस्तफा के साथ बैठता है। तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूँ। जिक्र है क्या? बहुत देर से लफ्ज़ जिक्र मैं सुना। मैंने कहा कि दादा के कदमों की धूल को, अपने मुक़द्दस उलमा के कदमों की धूल को चेहरे का आधा मारा। कहा दोनों आदमी किसको जिक्र नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं। कहा खालसाह में आए तो खालसाह में एक जिक्र है जिसका नाम बात है और एक जिक्र है जिसका नाम नबी है। हमने कहा दोनों जिक्र के हम को क्या कहते हैं? कहा उसे ही कलमा तर्जुमा कहते हैं। यहाँ जिक्र कराया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उसे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं करीब करके मैं अपने उलमा के कलमों की धूल को चेहरे का राजा मिलता अलीका पेश करूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह भी जिक्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जिक्र है। इसमें खुदा का जिक्र क्या? एक शख्स खड़ा हुआ कहा नमाज जिक्र खुदा। मैंने कहा इंसान नहीं है। रोजा जिक्र खुदा। मैंने कहा इंसान नहीं है। ज़कात जिक्र खुदा। मैंने कहा इंसान नहीं है। हज जिक्र खुदा। मैंने कहा इंसान नहीं है। मगर जिक्र है क्या? तुम क्या जाने गए? नमाज रोज़ों को ही जिक्र जाना और दूसरों को नहीं। तो हमारे उलमा फरमाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मुस्तफा का जिक्र है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मेरे खुदा का जिक्र है। सुभान अल्लाह। बस वाराणसी चोटी से मेरे मुस्तफा ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किसका जिक्र हुआ? ये मुस्तफा का। किसका जिक्र हुआ? मुस्तफा का। जोर से बोलिए। और जब ये ऐलान मेरे मुस्तफा ने किया तो मेरे रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसका जिक्र है? खुदा का। जोर से बोलिए। खुदा का। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसका जिक्र है? अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। अल्लाह से बोल दीजिए
छोड़िए, वरना जरा सा फिसल जाऊंगा तो जहन्नम में चला जाऊंगा, संभल जाऊंगा तो खुद भी जन्नत ही बनूंगा, अपनी पूरी कौम को जन्नत में ले जाऊंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये खुदा का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तेरा चर्चा करूंगा। अब मुझसे हमदर्दी की तारीफ की जाए तो मेरे रसूल की सूरत की तारीफ हो, ये जिक्र खुदा है। मेरे रसूल की सीरत पर गुफ्तगू हो, ये जिक्र खुदा है। मेरे रसूल की रफ्तार पर गुफ्तगू हो, ये जिक्र खुदा है। मेरे रसूल के गुफ्तार पर जिक्र हो, ये जिक्र खुदा है। मेरे रसूल की खलवत बयान किया जाए, ये जिक्र खुदा है। मेरे रसूल की जलवत बयान की जाए, ये जिक्र खुदा है। मेरे रसूल का हल्म सुनाया जाए, ये जिक्र खुदा है। मेरे मुस्तफा की कौम सुनाई जाए, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफा का मुजज़्ज़ा बयान किया जाए, ये जिक्र खुदा है। मुझसे हम वही का जिक्र हो, ये जिक्र खुदा है। को बयान किया जाए, ये जिक्र खुदा है। अबूए नाम को बयान किया जाए, ये जिक्र खुदा है। चश्मानी मुबारक को बयान किया जाए, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफा के लबाए नाम को बयान किया जाए, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफा के शान मुबारका को बयान हो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफा के दस्ते नामी का बयान हो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफा जाने रहमत के सरापा को बयान करे, ये जिक्र खुदा है। रब फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तेरा चर्चा करूंगा। और मुझे पहले जो हुजूर शमसुल उलमा ने पूरी जिंदगी नबी की तारीफ किया है, ये जिक्र खुदा है। नबी की अजमत सुनाया है, ये जिक्र खुदा है। नबी की नबूवत फरमाया है, ये जिक्र खुदा है। नबी की तारीफ करते गए, जिक्र खुदा करते गए। अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तेरा चर्चा करूंगा। उन्होंने पूरी जिंदगी जिक्र खुदा किया और हर जगह शमसुल उलमा का चर्चा। शमसुल उलमा ने अपने नबी की तारीफ की, नबी के सराफा को उन तक पहुंचाया। उन्होंने जिक्र खुदा किया। रब का फरमान है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तेरा चर्चा करूंगा। गोया जहां जहां ज़ाकिर मुस्तफा है, वहां वहां मेरे खुदा ने उसका चर्चा कर दिया। उनके कहने को जमीन में उनका चर्चा, आसमान में उनका चर्चा, हवाओं में उनका चर्चा। फर्क चला है कि हम अपने एतबार से किसी का चर्चा करते हैं। मेरा रब अपनी कुदरत क्या फरिश्तों में अपने शमसुल उलमा का चर्चा फरमाता है। दुआ कीजिए कि मौला हुजूर शमसुल उलमा का फैज़ान हम सबों पर जारी बोलिए आमीन। चलते चलाते एक प्यारी बात आप सबको तकरीर के आखिरी सुनने देंगे, मगर मैं जिस बुनियाद पर पूरे इंडो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और दीगर ममालिक में पहचाना जा रहा है, वो काम करके बारामुल्ला से मैं जाना चाहता हूँ। कितने लोगों के हाथ में हुजूर सैयद, कितने लोगों के सीने में हुजूर शमसुल उलमा की मोहब्बत है। मैं अपना हाथ हवाओं में लहराकर लोगों के रसूल अल्लाह सब लोगों के सीने में मोहब्बत है। बोलो
शमसुल उलमा के नाम पर कौन है जो एक हाथ काट के दे? एक हाथ काट के दे। सब लोग तैयार हैं, मैं तो काटने को तैयार हूँ, मगर मैं इतना बेसब्र नहीं हूँ। 2024 के बाद ये हाथों की जरूरत है। जी 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 बिल्कुल हक है हक है हक है। और 20 मई से पहले इस हाथ को मजबूत रखना है कि नहीं रखना? ताकि 6 जून के बाद अगर कोई वार हो तो इसी हाथ से रोके। हम दुआ करते हैं मौला, यहाँ से जितने पढ़ने आए हैं सबों के बाजू में हज़रत अब्बास जैसी ताकत अता फरमा दे। हमारे जवानों के बाजू में हज़रत अली अकबर जैसी ताकत अता फरमा दे। बच्चों के बाजू में आला मोहम्मद की कुव्वत अता फरमा दे। इतने लोग आप काट के दे सकते हैं, मैं इतना बेदर्द नहीं हूँ कि आपको रुला बनाऊं। अभी 2024 की मुसीबत मिलनी है हमको। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को निजात अता फरमाए। देखिए जरसुस शोरा हज़रत के फरहत साहब, अल्लाह ताला की कबूल में फिक्र दो। आमीन। कहे पर बताओ जो मुस्लिम उलमा नमाज पढ़ते थे, इतने लोग हैं जो कल से 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, वो अपने पीर की मोहब्बत में खड़े हो गए। पूरा काम हो रहा, हम पूरा काम करना चाहते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कोई है जो शमसुल उलमा के नाम पर कल से 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, वो जरा करीब आ जाए। आप ही का काम करूंगा मैं, अपना काम नहीं करूंगा। आ जा बेटा, आ जा बेटा, आ जा मेरे साथ, आ जाइए बैठना, फिर वहीं जाके आप बैठ जाएंगे करूंगा। नहीं थोड़ा तो आ जाएगा, करने में तकलीफ नहीं है तो आ जाइए, ताकि जो उलमा गवाह बुलाए सारे फरिश्ते गवाह आ जाओ। ऐसे कौन 5 वक्त नमाज पढ़ोगे? इन लोगों ने वादा किया है, अब मेरे साथ कहिए अल्लाह।